Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 7 of class 11th maths, that is permutations and combinations. Okay. Students, till now we have covered the fundamental principle of counting. After that we have studied the concept of factorial. Then we have covered the permutations. Okay. And I told you that permutation is the arrangement of objects in definite order. Okay, and in permutation, student, we have studied the formula of permutation, that is what is the number of permutation when you are taking n objects and r at a time. Okay, the number of permutations of n objects taking r at a time. So in that case the formula of permutation is npr, which is equal to factorial n upon factorial n minus 1. Okay, where the object don't repeat itself. Okay, so in that permutations we have studied 2 points. First point was that when the object are distinct, means when the object are different, and in the second case we have studied when the objects are not distinct. Okay, so in first part, when the objects are not distinct, in that part we have studied two theorem. Okay, we have studied two theorem. The first theorem was that the number of permutation of n objects taken r at a time when the objects don't repeat is equal to npr. Okay, and the second theorem was that number of permutations of n objects taking r at a time when the repetition of the object is allowed. So in the case we got the permutation is equal to n to power r. Okay, in the second condition, when the permutation when the objects are not distinct, we have studied again two formulas, that if there are n objects and p1 of one kind, p2 of second kind, and so on, so the number of permutation of that objects is equal to factorial n upon factorial p1 into factorial p2, and so on. So that much thing we have covered till now, student, till part 6. Okay, so in part 7, that means today's video, we will solve few important questions of permutations. Okay, so let's start. This question, this is the example of your NCERT and it is very important. Okay, this type of question always comes with the exam. Now see what is the question. Find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter, so that first part, all vowels occur together, all vowels occur together, and second part, all vowels don't occur together. Okay, all vowels don't occur together. It is very important question, student. It usually come in the any type of examination, either in the boards examinations or in your 11th class examination or in the competitive exam. In all type of exam, this type of question comes from permutations. Okay, so see what is the question. Find the number of different 8 letters arrangement that can be made from the letter of the word daughter, so that all vowels occur together, and second, all vowels don't occur together. So see, we have to make number of different 8 letter arrangement. Okay, now from which word? From the word
daughter. Okay, now see in daughter how many letters are there. So by seeing the word daughter we can say 1 2 3 4 5 6 7 8, total 8 letters are there in the word daughter. Okay, so from these words we have to make number of different 8 letter arrangement, and the cases are given. In the first case all vowels should come together, and the second case all vowel should not occur together. Okay, now students see, there are 8 letter word na daughter. To see how we will solve it, we have word. What word we have? We have word that is daughter. Okay, daughter. Now by seeing the word daughter I can say there are total 8 letters. So it means that the total number of objects is equal to 8, because from these letters na we have to make 8 letter word. So because in the daughter word there are 8 letters, so the total number of objects will be 8. So in this case n will be equal to 8. So now students, suppose this is a daughter word, and I assume that कि whatever letters are used, I have assumed that whatever letter are used in the word daughter all are distinct. ठीक है, हमने क्या माना कि मान लिया कि जो डॉटर वर्ड में सारे लेटर्स यूज हो रहे हैं वो सब अलग अलग हैं. तो जब सारे लेटर्स अलग अलग होते हैं और सभी को हमको एक साथ लेना है, सभी को एक साथ इसलिए लेना है क्योंकि हमें 8 लेटर अरेंजमेंट बनाना है. तो अगर आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स है और आप सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, मान लो सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट, तो और आपको उन्हीं का सबको एक साथ लेके एक अरेंजमेंट बनाना है, तो आप कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल n तरीके से. When you have n objects and you are taking all at a time, when all the objects are different, so in that case number of permutation is equal to factorial 8. We all know that. ठीक है, we know that factorial 8. Okay, now student, this we know. So n equal to 8. So what we will write? So the total number of arrangements can be possible from the word that is daughter taken all letters at a time total number of arrangement only student. total number of arrangement, कितने अरेंजमेंट हम लोग टोटल बना सकते हैं इससे. ठीक है, taken all at a time will be equal to factorial n. क्योंकि अगर हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं और सभी को एक साथ लेना है तो कितने टोटल बना सकते हैं हम लोग? टोटल फैक्टोरियल n के बराबर बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? NPR होता है. फॉर्मूला इज NPR, एंड द मीनिंग ऑफ NPR इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time. when the objects don't repeat. So in this case NPR is the formula. लेकिन आप R की जगह क्या कर रहे हो? आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट ले रहे हो, तो NPR की जगह क्या बनेगा? NPN, और NPN की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n. तो यानी कि 8 लेटर का कोई वर्ड दिया है आपको, तो उनसे आप टोटल नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट बना सकते हो? सभी को एक साथ लेके फैक्टोरियल n. दिस यू ऑल शुड नो. ये चीजें मैंने पहले बताई हैं. ठीक है, अगर आपको नहीं बताया तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए. अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और सभी को एक साथ ले रहे हो और सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, तो उनके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनते हैं? NPN, दैट इज फैक्टोरियल n. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 8. सो इट मींस दैट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल गेट फैक्टोरियल 8. ये हमको मिल रहा है. ठीक है, इतने टोटल अरेंजमेंट बन सकते हैं. ये तो हुआ कि इतने टोटल बन सकते हैं इस डॉटर वर्ड से. अब लेकिन हमको जो लेना है, हमें लेना है ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर. पहला पार्ट में फर्स्ट पार्ट इज दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर. मतलब कि जितने भी वॉवेल है हमें ऐसा अरेंजमेंट बनाना है
जिसमें सारे वॉवेल एक साथ आने चाहिए। तो पहले आप देख लो वॉवेल है क्या क्या यहाँ पे वॉवेल क्या क्या है, ए है, यू है और ई है। ठीक है, 3 वॉवेल यूज हुए हैं इस वर्ड डॉटर में। डॉटर में टोटल कितने वॉवेल है, 3। तो मतलब कि हमको कुछ ऐसा अरेंज करना है कि हमको तीनों वॉवेल एक साथ चाहिए। ठीक है, तीनों वॉवेल एक साथ चाहिए। तो एक बात बताओ, हमको बनाना है 8 लेटर वर्ड और हम ऐसा चाहते हैं कि तीनों के तीनों वॉवेल एक साथ आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, आप मान लो ये 3 वॉवेल नहीं है, ये केवल इनका एक ग्रुप है, मतलब आप इन 3 को मान लो एक, आप इन 3 को मान लो एक ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मान के जितने भी वॉवेल होंगे मान लो क्वेश्चंस में, यहाँ पे जो 3 है मान लो 4-5 वॉवेल होते, तो उस केस में आप क्या करते, जितने भी वॉवेल हैं उनको आप एक कंसिडर कर लो, एक। तो मान लो अगर मैं इसको एक मान लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मान लिया 1। ठीक है, तो हमारे पास जो डॉटर वर्ड था डॉटर, उसमें लेटर थे 8 लेटर थे और उसमें से 3 वॉवेल थे। ये वॉवेल क्या है, ये वॉवेल है, दीज आर वॉवेल्स। ठीक है, दीज आर वॉवेल्स, और इन तीनों को मैंने एक मान लिया, तो हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट थे जिसमें से 3 वॉवेल थे, तो कितने बच गए, 5। ठीक है, 5 वो और 3 वॉवेल को मैंने एक माना है, तो मान लो 5 और 1 कितना हो गया, इस हिसाब से 6। इज इट क्लियर? 8 लेटर वर्ड है, 8 लेटर वर्ड में 3 वॉवेल है। ठीक है, 3 वॉवेल को आप अलग कर दोगे तो कितने बच जाएंगे ऑब्जेक्ट्स, 5। अब मैंने बोला है कि 3 वॉवेल को आप 3 ना मान के एक ही मानो। ठीक है, तो जब 3 को एक मानोगे तो 5 पहले और एक ये, तो 6 हुए टोटल। तो यानी कि जब इनको अरेंज करना होगा, मान लो आपको इन सभी को अरेंज करना हो, अगर आपके पास 6 लेटर का वर्ड है, 6 लेटर हैं और आपको 6 को एक साथ लेना है, तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो सपोज आई हैव कंसिडर्ड इट 1, so the 8 letter words, 8 letter word can be arranged in, नाउ 5 पहले थे और इनको तीनों को मैंने एक मान लिया, तो 5 और 1 कितने हो गए, इन फैक्टोरियल 6 वेज, क्योंकि 6 हमको बनाना है, 8 ही लेटर का वर्ड बनाना है, लेकिन हमने क्या किया कि 3 वॉवेल को एक मान लिया। अभी बताएंगे क्यों माना, 3 वॉवेल को मैंने एक मान लिया। जैसे कि मान लो ये वर्ड है डॉटर है वर्ड, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले वॉवेल को अलग कर दे रहा हूं। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो जब वॉवेल को अलग कर देंगे तो क्या क्या बचेगा, डी बचेगा, देन जी बचेगा, एच बचेगा, टी बचेगा और आर, ये 5 बचे थे। और इन 3 वॉवेल को ए ई यू को मैं एक साथ मान लिया हूं। तो अगर आपको इन सबको एक साथ अरेंज करना होगा, तो ये 5 है और इसको मैं एक माना हूं, तो 5 और 1 6 हुए। तो 6 लेटर वर्ड को अगर आपको अरेंज करना हो तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 6 तरीके से। ठीक है, तो इसको हम अरेंज कर दिए, 8 लेटर वर्ड कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 6 वेज। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब आप वर्ड बनाओगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ये ए यू ई ही आए हमेशा, ये तीनों भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, ये तीनों भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं। कभी कभी ई यहां आ सकता है, यू उधर हो सकता है, मतलब कि आपस में अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं 3 का। और अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं और 3 को आपको अरेंज करना है, तो कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 तरीके से। जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने फैक्टोरियल से आप उनको अरेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। अगर आपको 3 ऑब्जेक्ट है और तीनों को अरेंज करना है, तो टोटल अरेंजमेंट कितना बनेगा, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट होते तो फैक्टोरियल 2, 4 ऑब्जेक्ट होते तो फैक्टोरियल 4। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट थे ना, तो उनको मैं कितने तरीके से अरेंज किया, फैक्टोरियल 8 तरीके से। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि ऑल वॉवेल शुड अकर टुगेदर, तो जितने भी वॉवेल है मैं उनको इकट्ठा लिख लूंगा और उनको मैं एक कंसिडर करूंगा। तो टोटल 8 लेटर का वर्ड था, तो जब 3 वॉवेल हट गया तो 5 वर्ड वो, और 3 वॉवेल को मैं एक माना हूं, तो 5 और 1 6। तो यानी कि इस केस में अगर वॉवेल्स टुगेदर हो तो उस केस में कितने तरीके से हम अरेंज करते हैं, 6 वेज में। लेकिन जो वॉवेल है ए यू ई, दैट इज ए यू ई कैन बी अरेंज in factorial 3 ways. Why factorial 3 ways? Because A, U, E are 3. So if 3 vowels are there, so they can be arranged in factorial 3 ways. So the number of
different, so the number of different 8 letters arrangement when vowels occurs together is equal to। अब देखो, जब आप वॉवेल को साथ में लोगे तो फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज किए, लेकिन उन वॉवेल को भी तो अरेंज कर सकते हो। तो जब आप अरेंज करोगे वर्ड को तो वॉवेल को भी तो अरेंज करोगे, तो ये दोनों प्रोसेस एक के बाद एक होगा। तो इसीलिए फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, यानी कि जो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। मैं फिर से समझा देता हूं। हमारे पास 8 लेटर वर्ड थे, ठीक है। तो अगर आपके पास 8 लेटर वर्ड है और डॉटर जो था हमारा 8 लेटर वर्ड था और हमें 8 लेटर अरेंजमेंट भी चाहिए, मतलब कि 8 लेटर है तो हमको 8 को लेना है, तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 8 तरीके से। ठीक है, उसके बाद पहला केस था कि ऑल वॉवेल शुड कम टुगेदर। तो अगर सारे के सारे वॉवेल आने चाहिए तो हमने पहले देख लिया वॉवेल है क्या क्या। तो वॉवेल है ए यू ई, 3 वॉवेल है और टोटल लेटर कितने थे? 8, यानी कि 3 वॉवेल हटा दोगे तो 5 बचेगा। लेकिन आप उन 3 वॉवेल को एक वर्ड कंसिडर करो, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, तो 5 और 3 वॉवेल को 1, यानी कि 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो इस केस में जब वॉवेल टुगेदर होंगे तो कितने तरीके से हो सकते हैं? 8 लेटर वर्ड कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 6 वेज। लेकिन ए यू ई मतलब कि जो वॉवेल है वो भी तो आपस में अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ए यू ई ही हमेशा आए। कभी कभी आ सकता है ए ए यू भी आ सकता है, कभी कभी आ सकता है यू ए ई भी आ सकता है। तो यानी कि वॉवेल्स भी अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे साथ ही में रहेंगे लेकिन पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3। और चूंकि ये दोनों प्रोसेस एक के बाद एक होगा, इसीलिए द टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट्स व्हेन वॉवेल्स विल अकर टुगेदर विल बी फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। मतलब कि आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे कहा जाए कि वॉवेल साथ में आने चाहिए, वॉवेल साथ में आने चाहिए, तो आप वॉवेल्स पहले देख लो कितने वॉवेल्स हैं, उनको काउंट कर लो और उन सबको एक मान लो। उन सबको एक मान लिया और जो बचे हुए थे, जितने भी बचे होंगे, मान लो 10 लेटर का वर्ड है और उसमें 4 वॉवेल है, तो 4 वॉवेल को आप एक मान लो। और 10 लेटर का वर्ड था तो यानी कि 6 बच गए होंगे, तो 6 और 1 कितने हो गए? 7। तो फैक्टोरियल 7 तरीके से ये अरेंजमेंट पॉसिबल है जब वॉवेल साथ में हो। लेकिन वॉवेल भी तो अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो 4 वॉवेल थे तो कितने तरीके से वॉवेल अपने आप में अरेंज हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4 तरीके से। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4। तो उस केस में आंसर फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4 होता, इस केस में आंसर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 होगा। और जिसका आंसर होगा आई थिंक वो होगा 4320, 4320। ठीक है, this will be the answer, okay, of first part. So please write, student. यहां पे फैक्टोरियल 6 इसलिए आया क्योंकि 3 को मैं 1 मान लिया और डॉटर में 5 अभी बचे होंगे। डॉटर में कौन कौन से 5 बचे होंगे? दैट इज डी बचा होगा, जी बचा होगा, एच बचा होगा, टी बचा होगा और आर होगा। तो ये 5 और 1 6। तो इसलिए फैक्टोरियल 6 तरीके से ये अरेंज हो गए जब वॉवेल साथ में होंगे। लेकिन वॉवेल भी अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो 3 वॉवेल है तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज करेंगे, तो उनका नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, चलो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या करना है? वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए, कोई भी वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए इन सेकंड पार्ट। In second part, vowels don't occur together. This is the second part, okay? All vowels don't occur together. तो देखो हम लोग के पास टोटल अरेंजमेंट कितना था? 8 लेटर के वर्ड हैं। अगर हमारे डॉटर इस डॉटर वर्ड से मुझे 8 लेटर का अरेंजमेंट चाहिए था,
तो डॉटर में 8 लेटर थे और मुझे 8 लेटर का ही अरेंजमेंट चाहिए था। तो अगर सारे ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है। तो 8 ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम पे लोगे तो फैक्टोरियल 8 तरीके के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट मिलेंगे हमको, ठीक है। 8 लेटर का वर्ड है और 8 लेटर का अरेंजमेंट भी चाहिए। इसका मतलब 8 ऑब्जेक्ट है और 8 को आप ले रहे हो, तो उस केस में क्या होता है 8p8 दैट इज फैक्टोरियल 8 वेज से हमको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिलेंगे। उन फैक्टोरियल 8 वेज में इतने वेज हमारे क्या हैं, उन फैक्टोरियल 8 वेज में इतने वेज वो हैं जिसमें वॉवेल साथ में आ रहे हैं। तो मतलब क्या करेंगे, जब सारे वॉवेल साथ नहीं आएंगे तो उस केस में नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट is equal to total number of arrangement minus arrangement when vowel occur together। मतलब कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट था फैक्टोरियल 8, मतलब कि इतने ही हमारे पास टोटल अरेंजमेंट होंगे। उन फैक्टोरियल 8 वेज में हमारे पास इतने तरीके हैं, इतने अरेंजमेंट ऐसे हैं जिसमें वॉवेल साथ में आ रहा है, इतने वॉवेल हैं, इतने अरेंजमेंट ऐसे हैं जिसमें वॉवेल आ रहा है। जैसे कि मान लो एक होगा, तो मान लो कि कोई टीम का अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पूरे में से 1/2 माइनस करते हो। तो सेम वेज है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट था फैक्टोरियल 8, मतलब कि टोटल 8 लेटर वर्ड्स के जो अरेंजमेंट थे हमारे पास वो फैक्टोरियल 8 तरीका था, ठीक है। उन फैक्टोरियल 8 वेज में 4320 वेज ऐसे हैं, मतलब कि 4320 अरेंजमेंट ऐसे हैं जिसमें वॉवेल साथ में आ रहा है। तो कितने तरीके ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल साथ में नहीं आ रहा होगा, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस अरेंजमेंट व्हेन वॉवेल्स अकर टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट था फैक्टोरियल 8 एंड अरेंजमेंट व्हेन वॉवेल्स अकर टुगेदर वो था 4320। ओके, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू अगर आपको याद हो स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8 इफ यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8 क्या होती है फैक्टोरियल 8 की वैल्यू, आई थिंक होती है 40320, मे बी 40320 होती है, ठीक है। इट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8 दैट इज 40320 माइनस 4320। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36,000 विल बी द आंसर, ठीक है। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। फैक्टोरियल 6 होता है 720, फैक्टोरियल 7 होता है आई थिंक 5040 एंड फैक्टोरियल 8 है। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू पुट किया मैंने 40,320 और ये है 4,320, तो बचेगा 36,000। मतलब कि इतने अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल साथ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम लोग के पास एक वर्ड था डॉटर, उन डॉटर वर्ड से हमें एक लेटर का डिफरेंट अरेंजमेंट बताना था। अब पहला केस ये था कि वॉवेल साथ में आए, दूसरा केस ये कि वॉवेल साथ में ना आए। तो हमने पहले क्या किया, पहले इस वर्ड से जितने भी अरेंजमेंट बन सकते हैं वो निकाल लिया। तो इस वर्ड में 8 लेटर है और हमें 8 लेटर का ही अरेंजमेंट चाहिए था। तो यानी कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ऑब्जेक्ट्स को साथ में लेते हो आप, तो फैक्टोरियल n वेज होते हैं टोटल अरेंजमेंट, ठीक है। तो 8 ऑब्जेक्ट है और सभी को आप साथ में ले रहे हो, तो टोटल अरेंजमेंट जो बना था हम लोग का वो बना था फैक्टोरियल 8। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। उसके बाद वॉवेल जब साथ में आएगा तो वॉवेल हमने देख लिया कौन कौन से वॉवेल हैं। तो ए यू ई 3 वॉवेल थे, तो इन 3 वॉवेल को 1 मान लिया, और चूंकि 8 लेटर का वर्ड था तो 3 वॉवेल को 1 माना और बचे होंगे 5, तो 5 और 1 कितने हो गए 6। यानी कि फैक्टोरियल 6 वेज से हम लोग 8 लेटर के वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें वॉवेल साथ में आए। लेकिन जब वॉवेल साथ में आएंगे तो वॉवेल अपना पोजीशन भी तो चेंज करेंगे। तो वॉवेल 3 है तो कितने तरीके से वॉवेल भी अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो ये जो प्रोसेस होगा 1 by 1 होगा, इसलिए फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा है। और फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर एक चीज एक तरीके से होती है और दूसरी चीज दूसरे तरीके से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फैक्टोरियल 6 वेज आया था और फैक्टोरियल 3 वेज आया था। तो
total number of 8 letter arrangements when vowels occur together is equal to factorial 6 into factorial 3. जब इसको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो 4320 आया, ठीक है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है और इसकी वैल्यू होती है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये इतने अरेंजमेंट थे जिसमें वॉवेल साथ में आएगा। तो हमको सेकंड केस में निकालना था व्हेन वॉवेल्स डोंट अकर टुगेदर। तो इस केस में क्या होगा, अगर टोटल अरेंजमेंट में से हम लोग वो अरेंजमेंट हटा दे जिसमें वॉवेल साथ में आएगा, तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिल जाएंगे जब वॉवेल साथ में नहीं आएगा। मतलब कि व्हेन वॉवेल्स डोंट अकर टुगेदर दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस द अरेंजमेंट व्हेन वॉवेल कम टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 8 थे, फैक्टोरियल 8, और अरेंजमेंट जब वॉवेल साथ में आ रहे हैं तो 4320, दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया 36,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आए तो एक दो बार फिर से करना आ जाएगा, ओके। तो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट। Now student, next question, it is also very important question, that is find the number of arrangements of the letter of the word independence. In how many ways of these arrangement? In first part, do the words start with P. Second part, do all the vowels occur together. Third part, do the vowels never occur together. And fourth part, do words begin with I and end with T. ठीक है। So see, there is a word independence. See how we will solve it. So first you see what is the word. Word is independence. Okay, you all know that independence. ठीक है। So first, whenever you see this type of question, first you see how many total number of arrangement that can be possible. Okay. So for solving that, we should calculate the total number of arrangement first. Okay. So for finding total number of arrangement, we will see how many objects are there, means how many letters are there. तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So total number of objects are 12. So it means that n will be equal to 12. मतलब कि जो total number of objects होते हैं उनको हम लोग n मानते हैं, तो n will be equal to 12. अब इस वर्ड इंडिपेंडेंस में स्टूडेंट आप देखो, इसमें जो वर्ड इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से वर्ड कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, तो ध्यान दो 1 2 n देखते हैं कितनी बार आया है। तो एक बार n यहां आया है, 2 बार यहां आया है, 3 बार यहां आया है, तो 3 टाइम्स कौन आया है, 3 टाइम्स आया है n, ठीक है। अच्छा, उसके बाद e देखते हैं कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 4 टाइम्स क्या आया है, 4 टाइम्स आया है e, ठीक है। और कोई वर्ड रिपीट कर रहा है स्टूडेंट, ई देखते हैं, ई तो हो गया, एन भी हो गया, तो अब डी देखते हैं, 1 2 डी आया है 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स क्या आया है, डी, ठीक है। तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देख लो, फिर ये देख लो कि कौन से वर्ड कितने कितने बार आ रहे हैं। तो 3 टाइम्स एन आ रहा है, मतलब कि 3 ऑब्जेक्ट हमारे एन है, 4 ऑब्जेक्ट हमारे ई है और 2 ऑब्जेक्ट हमारे डी है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा स्टूडेंट, फ्रॉम हेयर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पहले तो यही निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मैंने बताया था कि अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट निकालना है, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट P1 ऑब्जेक्ट एक काइंड के हो, P2 ऑब्जेक्ट दूसरे काइंड के हो, P3 ऑब्जेक्ट तीसरे काइंड के हो, तो उनका जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो होगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। और इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आएगा, बिकॉज बहुत लंबा क्वांटिटी, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1663200। इतने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 1663200। तो पहले तो कोई भी क्वेश्चन आपको ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं। तो हमने देखा 12 लेटर थे, जिसमें से 3 बार n आया था, 4 बार e आया था और 2 बार d आया था। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिला फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इससे जो हमको आंसर मिल गया स्टूडेंट वो मिला 1663200, ठीक है। ये तो है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब पहला पार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, डू ऑल द
do all the, sorry student, here should be word, do all the words start with P। अब देखो जितने भी, अब पहला वाला केस ये दिया है कि अगर सारे वर्ड P से स्टार्ट हो तब कितने अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 12 लेटर था, तो इसका मतलब हमको 12 लेटर का ही वर्ड बनाना है। अब उन 12 लेटर के वर्ड में मान लो मुझे 12 लेटर का वर्ड बनाना है, अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उस सभी वर्ड में स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, P आना ही चाहिए। तो एक बात बताओ, इस इंडिपेंडेंस वर्ड में P जो है हमारा, P एक ही बार आया, इसका मतलब जो स्टार्टिंग वर्ड होना चाहिए वो P होना चाहिए। स्टार्टिंग वर्ड हमारा क्या होना चाहिए, P। तो इस प्लेस को अगर फिल करना होगा, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए जितने भी लेटर थे हमारे पास, उनमें P कितनी बार आया था, एक ही बार तो आया था। तो इस प्लेस को हम लोग एक तरीके से फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास बच गया 11 प्लेस। अब हमें इन्हीं 11 प्लेस को क्या करना है, अरेंज। अब इन 11 प्लेस को जब अरेंज करोगे आप, तो अब ये तो 1 हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो फिक्स हो जाता है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। बाद में देखते हैं कि मल्टीप्लाई करना है या नहीं। तो अब इन 11 वर्ड्स को हम लोग को फिल करना है। अब इन 11 वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड कितनी बार आए हैं, उन 11 वर्ड्स में एन हमारा 3 बार आया है, ई हमारा 4 बार आया है, डी हमारा 2 बार आया है। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी, ये प्लेस तो भर गया था तो 1 into, अब 11 प्लेस को फिल करना है। तो 11 प्लेस को अरेंज करने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। एक प्लेस तो हम लोगों ने ऑक्युपाइड कर दिया ना, इस एक प्लेस को हमको P से फिल करना था, और P क्वेश्चन में केवल एक बार आया था, तो इसको एक तरीके से फिल कर दिए। अब जो 11 बचे हैं वर्ड, उन्हीं को ना अरेंज करना है। तो इन 11 वर्ड में 4 ई है, इन 11 में 4 ई है, 3 बार एन है और 2 बार डी है। तो उनको कितने तरीके से अरेंज करोगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से फैक्टोरियल 11 अपॉन, क्योंकि एक प्लेस तो फिल हो गया ना, अब हमको 11 को अरेंज करना है। तो 11 को अरेंज करने के लिए हमारे पास एन जो है वो 3 बार है, डी जो है वो 2 बार है और ई जो है वो 4 बार है। तो उन सबका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगी 138600, ठीक है, 138600 ये आएगा इस केस में। क्योंकि अगर मान लो यहां पे 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन, ये पार्ट समझ में आया आपको। हमें ऐसा वर्ड बनाना था जिसमें जो लेटर है वो P से स्टार्ट हो। तो 12 लेटर का वर्ड है तो 12 लेटर वाला वर्ड ही बनाना है, ठीक है, उसको अरेंज करना है। तो पहला प्लेस पे P आना चाहिए, क्वेश्चन में P एक ही बार आया था, तो इस प्लेस को तो एक तरह से फिल हो जाएगा। ये बच गया बात 11 प्लेस को अरेंज करने की। तो उन 11 प्लेसेस में, इन 11 लेटर में 4 बार E आया है, 2 बार D आया है और 3 बार N आया है। तो उनको जो अरेंज करेंगे वो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये वो कॉन्सेप्ट लगाया है जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 138600। अब सेकेंड केस, do the vowels occurs together, ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अब इसके पहले बताया था, ठीक है। सारे वॉवेल साथ में आने चाहिए। तो पहले आप देख लो वॉवेल कौन कौन से हैं स्टूडेंट। वॉवेल हमारे कौन कौन से थे यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, आई भी तो वॉवेल है। तो यानी कि जो वॉवेल है हमारे पास वो ई है, ई है, ई है, ई है और आई है। ये 5 वॉवेल है और टोटल ये 5 क्या है हमारे पास, 5 वॉवेल्स है, ठीक है। 5 वॉवेल्स है और ये साथ में ही आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टोटल लेटर थे 12, उन 12 में से 5 है वॉवेल, तो यानी कि जो बचे हुए लेटर वो कितने होंगे, 7। अब मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आप सारे वॉवेल को एक मान लो, ठीक है। आप सारे वॉवेल को एक कंसिडर कर लो। तो इनको मैं अगर एक कंसिडर करूंगा तो ये तो एक हो गया, और बचे हुए 7 लेटर होंगे ना। कौन कौन से लेटर बचे होंगे स्टूडेंट, बचा होगा N बचा होगा, N बचा होगा, D बचा होगा, P बचा होगा, फिर से N बचा होगा, फिर से D बचा होगा,
फिर से एन बचा होगा, ठीक है, देखो एन डी, और एक पी भी बचा है, फिर एन डी एन, ठीक है। तो एक बात बता मुझे, और एक सी बचा हुआ है, सॉरी सी, तो ये 7 लेटर मेरे बचे हुए थे, ठीक है, ये 7 लेटर, ठीक है, 5 वॉवेल है और ये 7 है टोटल, तो टोटल 12 हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, 5 वॉवेल को एक साथ लिख लो आप और उनको एक मान लो, तो ये तो 1 हो गए और ये 7 पहले से थे, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8, यानी कि 8 तरीकों में फैक्टोरियल 8 वेज से हम लोग जब वर्ड्स अरेंज करेंगे तो उसमें सारे के सारे वॉवेल एक साथ आएंगे। तो यानी कि जब सारे के सारे वॉवेल एक साथ आएंगे तो उस केस में फैक्टोरियल 8 अरेंजमेंट होगा। उस केस में कितने अरेंजमेंट होगा, फैक्टोरियल 8, क्योंकि 7 और इन 5 को मैंने 1 माना था, तो 7 और 1 8, फैक्टोरियल 8 वेज में सारे वॉवेल साथ में आएंगे। लेकिन अब वॉवेल को भी तो अरेंज करना है, हर एक वर्ड में जो वॉवेल का अरेंजमेंट होगा वो अलग अलग होगा। हर एक वर्ड में वॉवेल का जो अरेंजमेंट होगा अलग अलग, क्योंकि वॉवेल हमारे ई ई ई ई आई है। यहाँ पे देखो 5 वॉवेल है, तो पांचों वॉवेल आपस में अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अब वो कैसे अरेंज करेंगे, तो इन 5 वॉवेल में चार तो एक तरह के हैं और एक आई अकेला डिफरेंट है, ठीक है। अगर सारे अलग अलग होते हैं, मान लो यहाँ पे ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, 5 वॉवेल होते और 5 अलग अलग होते, तो उनको तो आप फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर देते। लेकिन यहाँ पे 5 वॉवेल हैं और जब उनको अरेंज करोगे तो 4 वॉवेल तो एक तरह के हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, जिसमें से पी काइंड के कुछ हैं, P2 काइंड के कुछ और हैं, P3 काइंड के कुछ और हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 एंड सो ऑन। तो हमने पहले तो क्या किया कि पहले सारे वॉवेल को अरेंज कर लिया साथ में, तो हमको फैक्टोरियल 8 वेज मिला। अब इन फैक्टोरियल 8 वेज में, ये जो फैक्टोरियल 8 वेज होगा ना, इसके हर एक अरेंजमेंट में वॉवेल का अरेंजमेंट भी अलग अलग होगा। फैक्टोरियल 8 तरीके से तो अरेंज कर दिए ना, तो उन फैक्टोरियल 8 तरीके में वॉवेल आएंगे साथ में। लेकिन वॉवेल जो आ रहे हैं वो वॉवेल अपने आप को अभी तो अरेंज कर सकते हैं आपस में। ये जो वॉवेल हैं, कभी कभी आई यहां भी आ सकता है, ई वहां जा सकता है, कभी आई पहले पोजीशन पे आ सकता है, ई बाद में आ सकता है। तो ये सारे के सारे वॉवेल भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। और ये अरेंज कैसे होंगे, ये अरेंज होंगे चूंकि 5 है तो फैक्टोरियल 5, और 4 तरह के एक वॉवेल है दैट इज ई विल बी डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है, विल बी डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। So in this case the total number of arrangement when vowels occur together will be factorial 8 into factorial 5 upon factorial 4. And one more thing student, factorial 8 तरीके से जब आप अरेंज किए थे तो इस factorial 8 तरीके में ये जो n है वो 3 बार आया और जो d है वो भी 2 बार आया है, तो ये factorial 3 into factorial 2 हो गया। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वॉवेल्स को जब साथ में लेते हैं तो पहले वॉवेल्स लिख लेते हैं कि वॉवेल्स कितने हैं, 5 हैं वॉवेल्स, तो ये 5 वॉवेल हो गए। अब देखो 5 वॉवेल को मैं 1 मान लिया, तो 1 ये हो गया और 7 लेटर पहले से थे, तो 7 और 1 8, मतलब कि टोटल को अरेंज करना है फैक्टोरियल 8 वेज से। लेकिन जब फैक्टोरियल 8 वेज से अरेंज करोगे तो ये जो 7 है, इस 7 में कुछ वॉवेल ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, मतलब कि एन जो है वो 3 बार आ रहा है, कुछ लेटर ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार आ रहा है, एन 3 बार आ रहा है और डी 2 बार आ रहा है। तो मतलब कि जब वॉवेल साथ में होंगे तो उनका अरेंजमेंट ये होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं इस चीज को, देखो समझो एक बार फिर से। हमको वॉवेल साथ में चाहिए था, तो हमने पहले वॉवेल को लिख लिया और इन पांचों के पांचों को 1 मान लिया। अब टोटल लेटर थे 12, तो 12 में से 5 वॉवेल है, उनको 1 मान लिया मैंने, तो 1 ये और 7 बचे हुए, तो 7 और 1 8, मतलब कि अब हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। 7 ये और 1 ये, तो 7 और 1 8, अब हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट हो गए और उन 8 ऑब्जेक्ट को मुझे अरेंज करना है। तो जब 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करोगे तो देखोगे ना पहले कि क्या वो अलग है या नहीं। यहाँ पे जो 8 ऑब्जेक्ट माना है हम लोगों ने, उसमें एन टाइप के 3 ऑब्जेक्ट हैं और डी टाइप के 2 ऑब्जेक्ट है। तो जब आप सारे वॉवेल को साथ में अरेंज करोगे तो उनका बनेगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये तब होगा जब सारे वॉवेल साथ में होंगे, ठीक है। लेकिन जो वॉवेल है हमारे पास, वो भी तो अपना पैटर्न या अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से चेंज कर देंगे, क्योंकि 5 वॉवेल है तो 5 फैक्टोरियल 5, और एक तरह के 4 तरह के एक वॉवेल है तो फैक्टोरियल 4। तो ये जो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब इनको जब सॉल्व करोगे आप, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 16800।
ठीक है। अगर ये सारे ऑब्जेक्ट अलग होते ना स्टूडेंट, सब के सब अलग होते, तो 1 और 7 8 यानी कि फैक्टोरियल 8 वे से हम लोग अरेंज कर देते। लेकिन जब हमने इसको एक माना, इसको तो हमने 1 मान लिया और पहले से 7 थे, तो हमारे पास 8 हुए। तो आप देखोगे ना कि उन 8 ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा तो ऑब्जेक्ट नहीं है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जब 7 और 1 8 देखे आप, तो आपने देखा कि ये जो 7 वाले हैं, मतलब कि इसमें इसका जो कॉम्बिनेशन है 7 और 1 8 का, इसको तो अभी छोड़ दो आप। पहले आप देखो कि 8 में से एन जो था वो 3 बार आ रहा है और जो डी है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। टी जो है वो 2 बार आ रहा है। इंडिपेंडेंस में डी 2 बार आता है और एन 3 बार आता है। तो 7 और 1 8 हुए, और उन 8 ऑब्जेक्ट्स में एन 3 बार और डी 2 बार आ रहा था। तो उनको कितने तरीके से अरेंज किए? फैक्टोरियल 8 वेज डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब जब इसको अरेंज कर लोगे तो हमारे इतना तो श्योर हो जाएगा कि हाँ, जितने भी लेटर अरेंज किए हम लोगों ने, उसमें वॉवेल साथ में आएगा। लेकिन इनके हर एक अरेंजमेंट में वॉवेल का अरेंजमेंट भी अलग होगा। तो हमारे पास 5 वॉवेल थे और उनको अरेंज करना है। तो उन 5 वॉवेल में से 4 तरह के एक वॉवेल थे, तो उनका कितना अरेंजमेंट होगा? अगर वो सारे डिफरेंट होते तो फैक्टोरियल 5 वे से अरेंज हो जाते, जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ सेम है, यहाँ पे कुछ सेम है। कितने सेम है? 4 सेम है। तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 होगा। एंड इसकी जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 16800, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड पार्ट तो मैंने बताया ही आपको। थर्ड पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज पार्ट नंबर 3 कि वॉवेल साथ में ना आए। डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, कब वॉवेल नहीं आएगा? अगर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट माइनस कर दोगे जिसमें वॉवेल आ रहा है, तो हमको वो अरेंजमेंट मिल जाएगा जिसमें वॉवेल नहीं आएगा। सो डू द वॉवेल नेवर अकर टुगेदर विल बी, यानी कि हमको जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट चाहिए इस केस में, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट जो होगा इस केस में जिसमें वॉवेल नहीं आ रहा है, वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, माइनस अरेंजमेंट व्हेन ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना था स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट था हमारा 1663200, ये था। और जिसमें वॉवेल आ रहे थे वो कितना था? 16800। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1646400। तो मतलब कि ये ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें वॉवेल नहीं आएगा, ओके। तो वॉवेल आएगा, पहले ये निकाल लो, और फिर वॉवेल नहीं आएगा उसको टोटल में से माइनस कर दोगे तो वो वाला अरेंजमेंट आ जाएगा जिसमें वॉवेल नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट। जितना भी मैंने बताया है, अगर ये कर लोगे, आप समझ लोगे, तो आराम से आपका एक्सरसाइज 7.3 लग जाएगा, ठीक है, आराम से, या कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। अब फोर्थ पार्ट बताते हैं इसका। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? डू वर्ड्स begins with I and ends in P। मतलब कि अब ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसमें चौथा पार्ट है कि वो I से बिगिन हो और P पे एंड हो। मतलब हमको तो 12 लेटर का अरेंजमेंट बनाना था, तो पहले बना लेते हैं 12 बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पर आई आना चाहिए और यहां पे पी आना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है। वी हैव टू मेक दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो अब देखो इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस जो वर्ड है उसमें आई एक बार आया है और पी भी एक बार आया है। तो मतलब कि ये वाला प्लेस को हम 1 तरीके से फिल कर सकते हैं और ये वाले प्लेस को भी हम लोग 1 तरीके से ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि आई और पी एक बार आया है तो एक तरीके से फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो हमने जो 2 प्लेस फिल कर दिया ना, हमें जो अरेंजमेंट बनाना था, अगर मेरे पास 12 लेटर है और मुझे सभी को अरेंज करना है, इसका मतलब मुझे
12 लेटर का ही कोई वर्ड मिलेगा। तो उस 12 लेटर में से मैंने 2 प्लेस तो फिल कर दिया, पहला और लास्ट वाला। तो कितने प्लेस बच गए यहां से यहां तक? यहां से यहां तक 10 प्लेस बच गए। अब इन्हीं 10 प्लेस को अरेंज करना है। अब इन जितने प्लेस को अरेंज करना है वही उसका परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, सुनो, वर्ड था इंडिपेंडेंस, और उस इंडिपेंडेंस वर्ड में पहले और लास्ट पे आई और पी आना चाहिए। तो मैंने पहले और लास्ट को आई और पी से फिल कर दिया एक एक तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास 10 प्लेस फिल हो गए, क्योंकि जितना ही लेटर होगा उतने ही लेटर का वर्ड का अरेंजमेंट बन पाएगा, क्योंकि हमको सबको एक साथ लेना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है इसका मतलब सभी को साथ में लेना है। तो 12 लेटर के वर्ड से हमको डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाना था, तो हमने 12 लेटर का कोई अरेंजमेंट बनाया। उसमें पहला आई से स्टार्ट हुआ और एंड किससे हुआ? पी से। अब क्या करना है, हमको इन 10 प्लेस को फिल करना है। तो इन 10 प्लेसेस में स्टूडेंट क्या क्या बच गया था? आई और पी तो चला गया, यानी कि ई बचा होगा, एन बचा होगा, और डी बचा होगा, और सी बचा होगा। तो यानी कि इस केस में जो हमारे पास प्लेस है वो 10 है। अब इस 10 प्लेस में से, यानी कि n इक्वल टू 10 में से, इन 10 प्लेसेस के लिए हमारा जो ई है वो 4 टाइम्स आया है, जो n है वो 3 टाइम्स आया है, और जो d है वो 2 टाइम्स आया है, और c तो एक ही टाइम आया है। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, द रिक्वायर्ड, केवल 10 ही प्लेस को ध्यान देना है, क्योंकि पहले और लास्ट वाला प्लेस तो फिल हो चुका है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। तो 10 प्लेस को ध्यान देना है। तो इनका रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि हम 10 को अरेंज करना है, जिसमें 4 ई आया था, 3 एन आया था, और 2 डी आया था। तो इसका जो अरेंजमेंट हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, जिसका आंसर होगा 12600। ठीक है, तो इतने तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग वर्ड्स अरेंज कर सकते हैं। कब? जब कोई वर्ड स्टार्ट होगा आई से और एंड होगा पी से। देखो 12 लेटर का वर्ड था, अब मुझे उससे डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाने थे, तो मुझे सारे वर्ड्स, सारे लेटर को साथ में लेना है। तो मतलब कि 12 लेटर के वर्ड जो इंडिपेंडेंस है, उसी की मदद से मुझे 12 लेटर का एक अरेंजमेंट बनाना है। एक क्या, बहुत सारे अरेंजमेंट बनाने हैं। तो मुझे पूछा गया था कितने अरेंजमेंट मैं बना सकता हूं जब पहला प्लेस आई से स्टार्ट हो और लास्ट वाला प्लेस पी पे खत्म हो। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। ये वर्ड हमारे पास कितना है? लेटर। ये वर्ड जो है हमारे पास वो इंडिपेंडेंस है, और इसी को मुझे अरेंज करना है। इसी को मुझे कैसे अरेंज करना है? ऐसे अरेंज करना है कि पहले प्लेस पे आई आए और लास्ट प्लेस पे पी आए। तो पहले और लास्ट प्लेस को पहले फिल कर दिया हम लोग एक एक तरीके से। तो अब तो बच गया 10 ही ना। मतलब कि हमको जब ऐसा क्वेश्चन में दिया हो कि इस प्लेस पे ये आना चाहिए और इस प्लेस पे ये आना चाहिए, इसका मतलब वो प्लेस हमने फिक्स कर दिया है। आपको केवल बचे हुए प्लेसेस को ही अरेंज करना है। तो बचे हुए प्लेसेस कितने थे? 10। तो उन 10 प्लेसेस में ई कितनी बार आया था? 4, डी आया था 2 बार, और एन आया था 3 बार। तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वही इसका परमुटेशन हो जाएगा। दैट इज रिक्वायर्ड अरेंजमेंट विल बी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, दैट विल बी इक्वल टू 12600। So students, I hope it is clear to you. It is little bit tough. You can practice 2 or 3 more questions so that you can be efficient in this type of questions. So student, whatever topics, whatever concept are required to solve the questions of permutations, I have given you. If you have not understood, please go through the book and watch the video more than once. Okay, when you watch more than once, then you will definitely understand. Okay, so by this student you can easily solve exercise 7.3 and up to 7.3 only in your half yearly exam will come. Okay, जितना भी 7.3 तक पढ़ाया गया है वही सब आएगा। केवल एक एक्सरसाइज बची हुई है, दैट इज कॉम्बिनेशन की। तो 7.3 तक ही आपके एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स, अप टू परमुटेशंस। ओके, so with the help of this concept you can easily solve 7.3. In the next video I will start the new topic, that is combinations. Okay, so till then students, have a nice day, take care, thank you.